This is question number 26. An uneducated retailer marks all his goods at 50% above the cost price and thinking that he will still make 25% profit, offer a discount of 25% on the market price. What is his actual profit on the sale? We have given 50% above the cost price, means if cost price is 100, then market price is 150. Okay, and thinking that he will still make 25% profit, offer a discount of 25% on the market price, means if we have market price is 150, then discount 25% लगाएंगे तो कितना आएगा 75%। 75% ऑफ 150 करेंगे तो क्या आएगा एस पी आ जाएगा। तो सी पी हमारे पास है तो हम गेन निकाल लेंगे। इट्स सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया था 150% अबव द सी पी दिया था ना। तो अगर हम सी पी को 100 मान लेते हैं तो एम पी आ जाएगा। एम पी आ गया। उसके बाद उसने लिखा था कि ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्केट प्राइस। डिस्काउंट 25% है तो मतलब 75% किसका मार्केट प्राइस कितना है 150। तो 150 का मार्केट प्राइस करके तो एस पी आ गया। तो हमारे पास गेन परसेंट निकल गया एस पी माइनस सी पी 200। इसमें ना एक चीज़ हमें कंफ्यूज करती है क्वेश्चन में कि इसमें हमें दिया है 20 that he will still make 25% profit. That is no use in this question. This is extra information which is provided in the question, and due to this information our time will consume, and we will again and again go making confusion in our mind that why this 25% is given, where we will use it, and so always be careful while solving this question. This question is very miscellaneous, I think, miscellaneous type question, and I see this question in many exam. So the extra information which is provided in the question is 25% profit. Okay, let us solve another question, that is 27. A retailer buys 40 pen at the market price of 36 pen from a wholesaler. If he sell this pen giving a discount of 1%, what is the profit percent? Retailer buy 40 pen at the market price of 36 pen from a wholesaler. If he sell these pens giving a discount of 1%, what is the profit percent? Okay, let us solve this question. Buy 40 pens ना, तो CP of 40 pens is equal to कितना होगा एट द मार्केट प्राइस ऑफ 36 पेन। तो 36 पेन का मार्केट प्राइस हो गया। देन नेक्स्ट गिवन दैट इफ़ यू सेल दिस पेन एट ए डिस्काउंट ऑफ 1% ना, तो सेल किए यही पेन मतलब 40 पेन। तो एस पी ऑफ 40% इज इक्वल टू 99% ऑफ 40। ओके, तो फिर हम उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। मीन्स कि हमें रिटेलर ने क्या किया है, बाय की है 40 पेन, ठीक है, एट द मार्केट प्राइस ऑफ 36। तो 40 पेन जो उसने बाय की है, सी पी ऑफ 40 पेन इज इक्वल टू 36। दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन। ए रिटेलर बाय 40 पेन एट द मार्केट प्राइस ऑफ 36 फ्रॉम अ होलसेलर, मीन्स सी पी ऑफ 40 पेन इज इक्वल टू 36। if he sell this pen giving a discount 1%, from the second line we will make a equation sp of कौन से पेन, these mean 40 पेन is equal to 1% discount किसका 40 पेन, तो ये आ गया 39 पेन। देन प्रॉफिट निकाल लेंगे। Question number 28. At what percentage above the CP must an article be marked so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%? At what percentage? हमें परसेंटेज निकालनी है। above the CP, CP के above an article be marked
That means we have to calculate the market price over SP. So as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%, means if we have CP 100 तो SP कितना होगा, SP कितना होगा, गेन किया 33%, तो SP कितना होगा 133. ओके, I think we have to solve this question very carefully. At what percentage above the CP must an article be marked so as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%? डिस्काउंट है 5%. हमने अगर CP को 100 ले लिया तो डिस्काउंट 5% है किसका, मार्केट प्राइस का डिस्काउंट मैंने बोला था इसके ऊपर निकलता है, मार्केट प्राइस के ऊपर. तो 95% ऑफ मार्केट प्राइस जो है वो SP है. SP कितना है 133 है. गेन किया है ना उसने किसके ऊपर, CP के ऊपर. तो अगर CP 100 है तो गेन करके SP कितना आएगा 133. तो 133 आएगा हमारे पास. तो मार्केट प्राइस है नहीं, मार्केट प्राइस हमने S ले लिया. तो अब हमें डिस्काउंट मिला है किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर. सॉरी, डिस्काउंट मिला है CP के ऊपर. CP मतलब इसने लिखा है ना डिस्काउंट ऑफ 5%. तो अगर 100 है तो डिस्काउंट हो गया 95 का. 95 किसका, मार्केट प्राइस का. तो 133. तो इसमें से हमें X मिल जाएगा. तो जो X मिलेगा वही हमारे पास मार्केट प्राइस होगा. कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा. अगेन हम इसको रीड करते हैं. एट वट परसेंटेज अबव द CP मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33% आफ्टर अलोइंग अ कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 5%. वैसे इस क्वेश्चन को हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं. MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट. तो इसको वहीं से सॉल्व करेंगे और वहीं से ये आराम से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा. इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके.